1.5 minutes, sir. Okay, start. Yes, sir. दिल की कथा भी है क्या, मुझको गिला भी है क्या, इस दिलगी के सिवा दिल ने किया भी है क्या, अश्क है ये जो नहीं है, मैं क्या करूं, दिल पे मेरा जोर नहीं है, मैं क्या करूं, अश्क है। Jain Sharab, how are you? Jain, Jain sir, I'm good sir. How are you? I'm good too. How you pronounce your name? Sir, it's Sharab Tanzin Sana. Sharab Tenzin Sana. Right sir. Okay, Sharab. Sana, yes sir. So this whole interaction is about your experience regarding your PSB and FSB as your recommended candidate. First of all, I would like to congratulate you on your recommendation. Okay, I think you recommended in the first batch, right? Yes sir. First batch sir. Okay, great, wonderful. So, is this whole conversation will be about your experience regarding your PSB and FSB? Okay. So before we start this conversation, I would like to know, a little bit about yourself, right? What is your education qualification? Which part of India you belong? And like, आपका ये कौन सा attempt था? Okay. And like that, we'll move on further. Then Yes we'll sir. go for the PSB. And PSB, you need to let me know that for how was the OIR for you and from where you prepared. Then how you cleared the written OIR. Then PP and DT, which were like which picture they shown you that time. After that, how many people made Yes it sir. PSB? Then subsequently we go for Yes the sir. FSB only, right? Then SSB we Right have sir. like people psych, TET, VET, SRT, SD, and then GTO part, then interview, and then board conference. And medical will take some other day. Okay. Right sir. So Sharab, Right sir. please start. Yeah, good. You can start with your introduction. We'll proceed. So first of all, right sir. First of all, thank you so much sir for giving in me an opportunity to share my experience with you and on such a great platform. So my name is Sharab Tanzin Sana. I belong from Kinnaur district of Himachal Pradesh, and I did my early schooling from Eklavya Model Residential School, Nichar, Kinnaur. And after that, I came to Delhi for my graduation. I did my BSc in Physical Sciences from Hansraj College, University of Delhi. After that, I did my master's from Arts Faculty, University of Delhi. And after that, I was preparing for civil services examination. And for PSB, FSB, and SSB, this was my very first attempt. Earlier, I have given one SSB attempt and I was screened out from Technical Entry Scheme 10+2 Army from 14 SSB Allahabad. So technically, this is my first conference. So this was my brief history about myself, and this experience was really enriching for me, sir. Okay, that was a what a wonderful introduction. Okay, so now we'll dive into your PSB. Okay, so tell me like where you gave your Yes, sir. PSB and Right. how many people reported and how they checking your document. It was strictly checked or like very normally, or some document you would like to say for the future people who are going to appear for PSB. Some documents are very very mandatory and those are very very important. And then we go for your OIR. How was the OIR? Maybe the Exactly, OIR exactly. which you faced, it was the first time, right? They never been, Yes, you yes. know, yeah. So you can start, please. सर जो मेरा पीएसबी था, माय पीएसबी वाज ऑन 10th ऑफ जून 2023. सो आई रिपोर्टेड देयर. सो डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में मेरे पीएसबी में 7 जो कैंडिडेट्स थे वो भी डॉक्यूमेंट आउट हुए हैं, और एफएसबी में भी इवन डॉक्यूमेंट आउट हुए हैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड. तो डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन ईच एंड एवरी स्टेप. आफ्टर रिकमेंडेशन ऑल्सो डॉक्यूमेंटेशन प्लेज अ रियली इंपॉर्टेंट रोल, एंड इन मेडिकल्स ऑल्सो यू हैव टू कैरी एवरीथिंग दैट इज इंस्ट्रक्टेड टू यू. सो 10 जून को हमारी रिपोर्टिंग थी सर पीएसबी की. सो द टोटल रिपोर्टिंग वो 65. वैसे मेरा सेकेंड बैच में था 10 बजे वाले बैच से, बट 8 बजे वाले बैच में बच्चे कम थे, तो हमें उसी में इंक्लूड कर लिया गया था, हम 5-7 स्टूडेंट्स को. सो हम लास्ट में थे, तो आई वाज अलॉटेड चेस्ट नंबर 62. तो हम 65 स्टूडेंट्स वर देयर.
इन द होल ग्रुप। तो वहाँ पे हमने रिपोर्ट किया था। आफ्टर दैट थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद अंदर जाके हमारा सीसीबीटी हुआ था, कंप्यूटराइज कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट। सो इट वाज अ वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर मी, बिकॉज इससे पहले जब मैंने एसएसबी दी थी तो उसमें ओआईआर हुआ था। इट वाज लाइक पेन पेपर वर्क। So this time it was the questions are flashed on the screen on the screen, and we have to give responses in our sheet. और एज हम दूसरे बैच के फर्स्ट बैच में इंक्लूड किए गए थे, तो हमें लास्ट वाली सीट्स मिली थी, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था आगे चीजों को देखने के लिए। Correct. सो दिस वाज द थिंग। एंड ओवरऑल सीसीबीटी का एक्सपीरियंस इट वाज गुड। एंड रिगार्डिंग माय प्रिपरेशन फॉर सीसीबीटी, तो सबसे पहले मैंने जो एग्जाम इसका दिया था सीजी कैट। सो मैं जो एक्वायर्ड मेरा नॉलेज था उसी बेस पे मैं गया था। उसके लिए मैंने स्पेशल ऐसे तैयारी नहीं करी थी, एज आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर प्रीवियस डिफरेंट एग्जाम्स ऑल्सो। I have cleared SSC CPO exam in 2020. So उसका भी syllabus more or less similar था, NSC CGL and CDS। तो जो acquired knowledge है उसके base पे I was able to clear the CG CAT exam. Or for this also the CCBT part was quite easy in the sense कि preparation के लिए कोई special वो नहीं करना पड़ा था, because जैसे different sections आते हैं, 7 sections in CCBT जो test है। तो जैसे series blood relation के questions, हमारे इंग्लिश के सिनोनिम एंटोनिम, स्पेलिंग मिस्टेक, एरर एंड ओमिशन के क्वेश्चन, मेमोरी टेस्ट के, एंड रीजनिंग के आगे उसके नॉन वर्बल के आपके रोटेशन के क्वेश्चंस, मिरर इमेज के, तो ये पजल के क्वेश्चंस आगे कुछ एक। तो जनरल इनका मैं आइडिया लेकर गया था। और साथ में कुछ एक पार्ट जहाँ पे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी टाइम के साथ, बिकॉज टाइम कंस्ट्रेंट इज आल्सो देयर। किसी क्वेश्चन में 60 सेकेंड है, तो उसके लिए मैंने स्पेशल किया था। जैसे रोटेशन वाले कुछ क्वेश्चन है वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे, तो उसके लिए आई हैव गॉन थ्रू फ्यू वीडियोस, एंड मैंने एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाई थी उस सेक्शंस के लिए। बिकॉज 80 क्वेश्चन 12 डिफरेंट टॉपिक से और 30 मिनट में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है सर उस टाइम पे। और लाइक मुझे पीछे वाली सीट मिली थी, तो वैसा थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था उस टाइम पे। तो बट ओवरऑल इट वाज गुड। क्वेश्चंस वर डूएबल। फ्यू क्वेश्चंस वर बिट टफ फॉर फ्यू सेक्शंस। तो उसमें क्या था कि जो बीच में आप बस शुरू में मार्क करते, मैं ऐसा कर रहा था कि शुरू में मार्क करता जा रहा था, बाद में जब इंस्ट्रक्शंस का बीच में टाइम आ रहा था उस टाइम आई वाज एनसर्कलिंग दैट। तो ऐसे कुछ ट्रिक्स वगैरह लगा के थोड़ा अपने एग्जाम पैटर्न को थोड़ा हम इजी बना सकते हैं। सो ओवरऑल सीसीबीटी हो गया था। उसके बाद हमारा सर, तो हम 65 स्टूडेंट्स थे, तो उसको तो हमें फिर इसके बाद किसी को आउट नहीं किया गया था इसमें। उसके बाद सारों ने ही पीपी एंड डीटी दिया था, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। तो उसमें हमारे 13 के ग्रुप्स बने थे सर, 13 के। तो हमारा लास्ट ग्रुप था, तो हमारे ग्रुप से द पीपीडीटी वाज गुड। तो उसमें से हमारे 5 रिकमेंडेशन हुए थे, मतलब फॉर द एफएसबी। फॉर द एफएसबी के लिए 5 रिकमेंडेशन थे। एंड द पिक्चर वाज, there are 4-5 men wearing some combat uniform, and they were taking another person who was injured on a stretcher. तो ये था सीन। तो we all made some different stories were there, सारे student candidates के 13 candidates के। So I made a story on the line of disaster management, कि एक disaster हुई है and they are NDRF personals, and there is a person Ram who is the leader, who was assigned the task to rescue the people from उस disaster से। तो I made a story on that line. And in the discussion part, so discussion part was not that healthy, क्योंकि first 40 सेकेंड 1 मिनट तक तो बहुत ज्यादा विषय रहा था। तो आई वाज प्रिपेयर्ड, क्योंकि मुझे पहले एक एक्सपीरियंस था। तो आई वाज शॉक्ड कि उस टाइम काफी एकदम से फिश मार्केट बन गया था, तो आइडिया नहीं लगता है कि क्या चीज बोले। तो मैं प्रिपेयर करके गया था। मेरे दिमाग में 2 स्ट्रेटेजीज थी, कि पहली स्ट्रेटेजी की या तो मैं शुरू से बोलने लग जाऊंगा और कंटिन्यूअसली बोलूंगा जब तक सब चुप हो जाए और फिर मैं ही बोलता रहूं, या फिर आई लिसन टू एवरीवन। जब थोड़ी सी शांति हो देन आई पुट माय पॉइंट, एंड माय वर्ड्स एंड माय पॉइंट्स शुड बी रियली क्लियर, कि और बहुत बेनिफिशियल हो, ताकि हम एक कॉमन कंसेंसस पे पहुंच पाए। और दूसरी चीज सर, आई लर्न फ्रॉम दैट माय पीपीडीटी was that कि the chess member after me, he was really active in discussion. वो क्या कर रहा था, हर चीज को एक डायमेंशन दे रहा था। he was
मतलब टेकिंग द ग्रुप इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, जैसे हमने डिस्कस किया। तो वो पहले ग्रुप को कह रहा है कि वी शुड डिस्कस अबाउट दिस, कि कितने उसमें पर्सन हमें दिख रहे हैं, और फिर उसके बाद टॉपिक क्या होगा, और उसके उनके मूड क्या है, ऐसे ऐसे करके। तो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी थी, और ये बाद में मैंने अपने अंदर इनकलकेट की, एंड आई अप्लाइड दिस मेथड इन माय जीडीज इन एफएसबी, सो इट वाज रियली बेनिफिशियल फॉर मी। और बाकी सबका इन्वॉल्वमेंट भी बहुत जरूरी है। और बेसिकली इसमें नरेशन पार्ट, सर नरेशन पार्ट सारा डिपेंड करता है कि आप आपकी स्टोरी कितनी क्रेज, और बीच में जो टाइम मिल जाता है आफ्टर राइटिंग योर स्टोरी और पीपीडीटी के बीच में, सो उस टाइम पे हम मेमोराइज कर सकते हैं चीजों को। और उस टाइम पे बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो आके पूछेंगे कि क्या स्टोरी थी, ऐसा वैसा। तो उस टाइम पे बेटर कि हम उसमें इंडल्ज होकर अपने आप को प्रेशराइज ना करें, और अपने आप को काम रख के अपनी स्टोरी को क्लियर क्लियर करे थे। क्योंकि मेरे पास भी एक कैंडिडेट आया था, तो ही वाज मेकिंग अ प्लान कि हम सब एक ग्रुप कंसेंसस पे आ जाते हैं, पहले ही अंदर जाके फिश मार्केट अच्छा, क्रिएट पहले होंगी। से उसने बताया था बट मतलब कि ऐसे ऐसे बिफोर करके। स्टार्टिंग योर हाँ पीपीडीटी सर। जीडी। ओके। हाँ सर। एक्चुअली हाँ, रिपीटर्स, यू नो, द ही रिपीटर्स केम टू यूजुअली मी। डू दैट। यस सर। यूजुअली रिपीटर्स डू दैट, अपना पहले ग्रुप बना लेंगे, ठीक है, विल नॉट फाइट इनसाइड, बट अंदर जाएंगे विल बी लाइक यस थिंकिंग सर। बीइंग अ फ्रेशर और समथिंग, ठीक है यार मैं फाइट नहीं करूंगा, इस बंदे ने बोला है सीनियर है, ठीक है, फाइट नहीं करेंगे। लेकिन जब यस घुसता सर। है, जब मार्केट होता है, तो लाइक समथिंग डिफरेंट, ये बोल तो कुछ रहा था, यहाँ तो कुछ और हो रहा है, राइट? सो एवरीवन इज यस सर। फाइटिंग यस दिस सर। यस गुड सर। बैटल, यू नीड टू बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट दैट। यस सर। ओके, सो व्हाट हैपेंड आफ्टर तो दैट? वो कैंडिडेट सब सबके पास जा रहा था, एंड ही वाज हम्म, लाइक कि तेरी स्टोरी क्या थी। तो हम अंदर फिश मार्केट क्रिएट नहीं करेंगे, हम विल डू लाइक इजीली डिस्कस एवरीथिंग एंड विल कम ऑन अ ग्रुप कंसेंसस। बट अंदर जाके तो चीजें अलग होनी ही थी। सो हम्म, इट वाज डिफिकल्ट फॉर हिम ओनली, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही ऐसे प्लानिंग करके गया था। सो द डिस्कशन वाज गुड। तो अच्छी डिस्कशन हुआ, सबने अपने पॉइंट किए। तो एक बंदा जो किया था ग्रुप ने, तो he described the whole story. And one more thing that is very essential and I learned in every step in every stage was that कि instructions बहुत important role play करते हैं सर। ओके, हर एक टास्क के लिए हमें इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं शुरू में, और उन इंस्ट्रक्शन को हमें सुनना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे पीपीडीटी के टाइम पे हमारे जो भी आके बोर्ड मेंबर्स थे, जो उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शन दिया कि जब हम म्यूचुअल कंसेंसस पे आ जाएंगे, तो द ग्रुप लीडर विल कम इन फ्रंट, he'll stand and come in front of the group, and he'll face us and narrate the whole story. So पर सब ऐसे डिस्कशन हुआ, तो हमने जब ग्रुप लीडर नॉमिनेट किया, तो वो भूल गया कि उसे ये इंस्ट्रक्शन मिली थी, वो बैठ के ही नरेट करने लग गया था। तो ओके, देन द yes then the assessor corrected him, तो उसने बोला कि do you remember what I earlier said। तो ऐसे फिर प्रॉब्लम होती है। और आगे भी एफएसबी से भी इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो माय फर्स्ट सजेशन विल बी कि इंस्ट्रक्शंस पे बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान दिया जाए, ताकि चाहे वो टाइम कंस्ट्रेंट हो, चाहे वर्क कंस्ट्रेंट, चाहे जो भी आपको इंस्ट्रक्शन में बताया जा रहा है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन टू दैट। यस सर। सो दिस वाज अबाउट माय पीपी एंड डीटी पार्ट। सो इसके बाद हम 5 बंदे हमारे ग्रुप से हो गए थे, एंड ओवरऑल 65 में से अराउंड 24 और 25 हुए थे सर उस बैच में, एफएसबी के काफी लिए। रिकमेंडेशन थी मतलब उस टाइम पे, राइट? रिकमेंडेशन वाज क्वाइट हाई दैट हाँ टाइम। सर, पीएसबी में हमारे बैच में थे। यस यस सर, दिस अच्छा, टाइम। तो जो फाइव पांच बंदे थे, उनमें कुछ क्वालिटीज आपने फाइंड आउट की, लाइक दे वेरी कोऑपरेटिव और दे आर लिसनिंग टू यू और दे आर मोर असर्टिव, their communication was too good when they're narrating their story? What was that, like you find, like the what made them यस clear सर। that, like any point you feel like something यस different सर। was there? सर सारे जो कैंडिडेट्स थे उसमें अपनी अपनी क्वालिटीज थी। जैसे मैंने एक कैंडिडेट बताया, उसका मेरे बाद सिस्टम नंबर था, तो ही वाज वेरी एक्टिव इन लाइक टेकिंग द ग्रुप इन द ग्रुप डिस्कशन इन अ पॉजिटिव वे। अलग अलग डायमेंशंस वो दे रहा था, और ही वाज लुकिंग लाइक ही वाज इमर्जिंग लाइक अ नेचुरल लीडर। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है जो हम ग्रुप डिस्कशंस में अपने अंदर इनकलकेट कर सकते हैं, कि हम एज अ ग्रुप में अपने वैल्यूएबल पॉइंट्स दें ग्रुप में, प्लस साथ में हमें ग्रुप को भी एक डायरेक्शन दें कि हम ऐसे Correct. ऐसे करके हम ग्रुप को कंक्लूजन पे ले आए। वरना एक ही पार्ट हम डिस्कस करते रहते हैं, एंड इट इज फ्यूटाइल, कि वो किसी काम का नहीं रहता। हम ग्रुप को आगे, हमें एक कंसेंसस पे पहुंचना है, तो हमें एक डायरेक्शन चाहिए। तो वो डायरेक्शन देने का काम कर रहा था, तो इट वाज रियली गुड। और कुछ कैंडिडेट्स थे, उनकी नरेशन बहुत क्लियर थी सर, वो बहुत अच्छा प्रिपेयर करके आए थे। एंड जितना टाइम नरेशन के लिए मिलता है, वो बहुत फ्लुएंटली बोले, और बहुत क्रिस्प और क्रिस्टल क्लियर था। तो वो भी एक बेनिफिट, बहुत पॉजिटिव पॉइंट था। और दूसरा सर, ग्रुप में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए।
कि जब ग्रुप में जैसे अपने वैल्यूबल पॉइंट्स तो ऐड करने हैं, लेकिन कब आपको बोलना है, और दूसरों के रिस्पेक्टिंग अदर्स व्यू पॉइंट ऑल्सो, तो ये चीजें भी सर बहुत मैटर कर रही थी डिस्कशन में. So Sharab, I think we are done with the PSP part. That is enough, right? Yes sir. Right sir. Gave all the points. But anyhow, I would like to tell the candidates who are watching this video. See, maybe he has a good aptitude, so he cleared in without practice or something in single shot, right? I think you already have cleared some government exams also, right? So you don't be having any Yes issue with sir. the like. Yes sir. तो सर ऐसे स्पेसिफिक प्रैक्टिस की जरूरत नहीं थी, क्योंकि रीजनिंग एंड इंग्लिश वाला पार्ट वाज कॉमन इन ऑल द इज कॉमन इन ऑल द एग्जाम्स. तो ऐसे स्पेसिफिक प्रैक्टिस नहीं की थी सर मैंने सीजी कैट की भी और सीसीबीटी की भी. Right. यस सर. Yeah. So, but इट some वाज candidates इजी will फॉर listen मी. to you and they'll also not practice those things, and they are not trained well before यस सर. about all those things, right? So they should be knowing, they should practice well, because you already यस सर. cleared the exam, you have been through that phase, you have been through that situation already, right? So that's not very cakewalk for you to clear that. It's not happening like for यस. everyone. So your both the scores यस are very एग्जैक्टली. important. You should have in the score wire one or two. That's what the as ICG look for any armed forces. Your job is to just practice well and just mark up and try to get in the wire one or two. That's what everyone need to do. Okay. So Sharp, now please now let us know about your this FSB. I would call it a final selection board. I think like when you reported to Delhi and how many candidates reported, and the first night people were practicing. Usually they do that. One night before the exam, right? रात में बैठ के पढ़ना शुरू कर देंगे. ठीक है यार, टैट वैट एसआरटी पे चलाएगी तो ये बनाऊंगा, ये थीम बनाऊंगा, ये and all. And then we'll go for the psychology. In psychology, we have TAT, VET, SRT, and SD. Yeah, please start. So we are obviously got recommended for FSB. So I was really happy at that time, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन भी इतनी ज्यादा नहीं थी. बट नाउ आई वाज क्लियर कि एक स्टेप हो गया है. नाउ आई हैव टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट स्टेप एंड मैं कर लूंगा. आई डू दैट. तो आई गैदर्ड इंफॉर्मेशन. ये कुछ माइक चेंज किया तुमने क्या? साउंड थोड़ी चेंज हो गई. कुछ बंद किया था क्या? नहीं सर. नहीं. ओके, कैरी ऑन. फाइन. Audible sir, right? Yes, yes. Your audible sound is coming. I don't know. It's a mobile sound or you connected with your headphone. I don't know. It is connected. Yes, sir. It is connected, sir. Okay, fine. Carry on. No problem. Yes, sir. So 10th June के बाद sir, my FSB dates came and हमें choice भी मिली थी. हमें first batch में allot हुआ था. So I was allotted to first batch. The batch number was 230709 and it was from 9th July to 14th July. तो इससे पहले मैंने preparations करना start कर दी थी. First of all, I gathered information about what the whole procedure is all about and क्या-क्या चीजें और क्या इसमें demands की क्या है. So I approached the whole process in a very scientific and technical way. कि मैं हर चीजों को एक रिसर्च बेस्ड मैनर में लिया कि मैंने कोई भी चीज करनी है तो कैसे करनी है. हर टास्क को, एक इंडिविजुअल टास्क को, उसके लिए प्रॉपर टेक्निक्स डिराइव करी कि मैं इस चीज को कैसे गो थ्रू करूंगा. So first of all, few of my friends were preparing for defense exams. So I talked to them. उनसे मैंने थोड़ा information लिया कि क्या प्रोसेस रहता है. And I referred to some YouTube videos also. और I joined few groups जिसमें मैं दूसरे कैंडिडेट्स के कांटेक्ट में आया. So then I got to know कि साइन होता है, जीटी होता है, इंटरव्यू बार कॉन्फ्रेंस and all. Sharab, your voice is not coming clearly. It's too crystal actually. थोड़ा सा पास आके बोलो जरा. बोलो. Say something. Hello. Now it is fine. Hello. Now it is good. Now it is okay, sir. Earlier Okay, it was, sir. I think it was or of something, I don't know, but it's coming directly from phone. Now see? Okay, right. Sir. Okay. Now good, great, wonderful. Yes, sir. Start. So, yes, sir. So my reporting day was 9th of July 2023. It was a rainy day. So I reported CGSB Noida. So few documents were there. Document verification was there. हमारा COVID certificate वगैरह check हुआ, admit card and call up letter. So after that we did entry part और हम सारे गए थे. The total reporting was 72 out of 90. So 72 reported. और वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हुई, बायोमेट्रिक एंड ऑल. तो वहाँ पे भी एक कैंडिडेट डॉक्यूमेंट आउट हो गया था. तो डॉक्यूमेंट इज रियली इंपॉर्टेंट. तो डॉक्यूमेंटेशन में बेसिकली सर कैरेक्टर सर्टिफिकेट का ज्यादा इशू आ रहा था इस बारी. कैरेक्टर सर्टिफिकेट में जो नोटिफाइड अथॉरिटीज है, उसमें जो एनलिस्टेड अथॉरिटीज है जिससे वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट वैलिड है,
एवरीवन इज क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर, तो उन्हीं से ही वो बने। जो वो कैंडिडेट था उसने किसी और अथॉरिटी से बनाई थी, तो इट वाज नॉट वैलिड, तो उस डॉक्यूमेंट आउट होना पड़ा था। Very important. तो डॉक्यूमेंटेशन प्लेज अ रियली इंपॉर्टेंट रोल, ये सर, क्योंकि ये चीजें हमारे हाथ में हैं और इसमें कोई ऐसे ज्यादा प्रिपरेशन तो चाहिए नहीं, डॉक्यूमेंट्स तो हम ओके कर सकते हैं अपने। तो ये चीजें थी। सो आफ्टर दैट वी ऑल वर सिटिंग इन अ हॉल एंड वी वर अलॉटेड चेस्ट नंबर। चेस्ट नंबर उससे पहले सर पीआईक्यू फॉर्म भी भरवाया गया था, एंड पीआईक्यू फॉर्म इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पीआईक्यू फॉर्म, क्योंकि फॉर माय इंटरव्यू पार्ट इट वाज कंप्लीटली पीआईक्यू। पीआईक्यू से बाहर बहुत रेयर एंड फेयर क्वेश्चंस थे, तो एवरीथिंग वाज फ्रॉम माय पीआईक्यू। सो पीआईक्यू को आप बहुत अच्छे से भरें। तो इट विल डिस्कस इन इंटरव्यू पार्ट. So we reported there. So we were distributed a few things like torch, alarm clock, and hangers and all. And we were given some instructions. We filled the PIQ form. और PIQ फॉर्म का मैं सर खुद 2 बार PIQ फॉर्म पेंसिल से और पूरा भर के गया था. एंड आई मेड नोट्स हर एक वर्ड का, लाइक आई वाज मेंशनिंग माय प्लेस ऑफ बर्थ और एनीथिंग, माय फादर, माय ऑक्यूपेशन, इनकम. तो हर चीज पे मैं क्वेश्चन बना के गया था कि कोई भी अगर काउंटर क्वेश्चन होता है PIQ से, सो आई विल काउंटर दैट. मतलब मेरा आंसर क्या होना चाहिए और लॉजिकल होना चाहिए. अगर कोई चीज Correct. है, मैंने ऐसा ये डिसीजन लिया तो क्यों, वो सारी चीजें मैं तैयार करके गया था पीआईक्यू के लिए. सो आई फिल्ड द पीआईक्यू फॉर्म एंड वी वर अलॉटेड चेस्ट नंबर. एंड आई वाज इन द फर्स्ट ग्रुप, बिकॉज मेरे ग्रुप में जो भी थे वो सारे उनके फर्स्ट कॉन्फ्रेंस था. तो इट वाज अल्फा ग्रुप फ्रॉम चेस्ट नंबर 1 to 9. देयर वर 72 पीपल एंड 9 ग्रुप्स में 8 ग्रुप्स बन गए थे, तो 72 का टोटल बैच था. तो ये सर. तो उसके बाद हमें रूम्स डॉर्म्स वगैरह अलॉट हुए, एंड हम फर्स्ट टू 9 चेस्ट नंबर्स को फ्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर गिवन, लाइक टीए डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट करना, हमारा मसाला मनी वाज देयर 250 रुपीज वो कलेक्ट करना, 500 सिक्योरिटी अमाउंट कलेक्ट करना, और 2-4 चीजें. तो ये भी बहुत अच्छा था सर, क्योंकि आई वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट द टीए So, डॉक्यूमेंट्स. तो क्या हुआ कि जैसे ही रूम में पहुंचे तो सारे लोग हमारे पास आ रहे हैं कि ऐसे ऐसे, तो इंटरेक्शन पहले दिन ही हो गया था काफी लोगों से. तो इट वाज प्लस पॉइंट फॉर मी, मैं सबको जानने लग गया था शुरू से ही. bedding, तो ये सारा you हुआ will रूम. provide ये सब, like bedding, जो नहीं गद्दा सर. रहता है, they didn't provide it, only cot provide की थी लोगों यस सर, ओनली मैट्रेस वाज देयर, बेड मैट्रेस और ने. मॉस्किटो नेट वाज देयर. यस Okay, सर. they give you, but they will like some और net have some mosquito net have holes also, right? So a little bit, यस सर, यस सर. yeah, there are. So we carry Odomas with you because this is Delhi area, and यस in सर. that area, like mosquitoes will be there. So be a bit, cautious and about all those things. And यस सर. that's all. I don't इट think इज so. एडवाइजेबल एंड. Yeah, yeah, please. Yes, sir. It is very much written in the instruction also कि you have to carry a mosquito repellent cream or something like that. So I carried it with me because there were many holes in my mosquito net also. So mosquito net was available and mattress, or there was no pillow and like bed sheet or nothing else. तो वो better कि हम खुद ही ले जाएं. और like पैकिंग वाले पार्ट में बिफोर गोइंग टू माय एफएसबी आई मेड अ चेकलिस्ट कि ये चीजें सारी मैं ले जाऊं, कुछ भूलूं ना, क्योंकि वहां पे फिर मतलब फिर टेंशन क्रिएट हो जाती है वैसे उस माहौल में. सो आफ्टर दैट वी वर अलॉटेड डॉर्म्स एंड वी डिड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द डे वाज ओवर आफ्टर डिनर. सो वी हैड अ Right. डिनर एंड आफ्टर डिनर देयर वाज मस्टर. सो मस्टर में हमें बता दिया जाता था कि द नेक्स्ट डे हमारा क्या क्या असेसमेंट होना है. तो एवरी ग्रुप वाज लाइक एक्सप्लेन्ड देयर कि व्हाट इज द शेड्यूल फॉर द नेक्स्ट डे. सो मास्टर में बताया कि टुमारो विल बी द साइक पार्ट, साइकोलॉजी टेस्ट. तो उसके लिए हमें बता दिया गया था एंड वी स्लेप्ट. उसके बाद अगले दिन हमने सुबह रिपोर्टिंग करी. वी वर इन फॉर्मल्स. सो हम साइक टेस्ट के लिए गए थे हॉल में. तो साइकोलॉजी टेस्ट, द होल टेस्ट वाज गुड. एंड द टैट वैट एसआरटी और एसडी सारा कुछ मैं प्रैक्टिस करके गया था. द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग साइकोलॉजी में क्या है कि सारा कुछ हमारे हाथ में है सर. जैसे जीटीओ वगैरह, जीडी वगैरह, उसमें दूसरों के परफॉर्मेंस से भी हमारे परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है कि आपका ग्रुप कैसा है. बट साइकोलॉजी पार्ट में यू आर द ओनली वन हु कैन मेक. अगर आपने बहुत अच्छा प्रैक्टिस वगैरह किया तो आप यू कैन डू इजीली. और बाकी प्रैक्टिस इज द की सर, क्योंकि आई प्रैक्टिस अ लॉट बिकॉज जो भी टैट वैट एसआरटी एसडी है इसके मैं 6-7 सेट लगा के गया था, मतलब पूरे कंप्लीट, और एक ही फ्लो में एक ही गो में सारा करने का है. तो आई डिड. ये तो 7 सेट इट वाज मतलब वेरी बेनिफिशियल फॉर मी. पूरे पूरे साइक का 7 सेट्स. बैट. यस सर. Okay, tat यस wet सर. ST
SRT and SD के टोटल 7 सेट? यस सर, हर एक दिन मैं एक सेट लगाता था, 2-2 घंटे के पूरा बैठ के। तो कहीं से परचेज किया था आपने सेट्स को, कैसे क्या? फ्रॉम वेयर यू गॉट ऑल दो नहीं सर, सेट्स? वो यूट्यूब पे अवेलेबल है सर, उस पे टाइमिंग्स वगैरह के साथ पूरा चलता रहता है। यू जस्ट हैव टू ओके। राइट। हाँ जी। और उसके बाद सर द अदर थिंग इज, उसके बाद एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम टेस्ट दे देते हैं, हम एनालाइज नहीं करें तो वो इट इज ऑल्सो नॉट बेनिफिशियल फॉर अस। तो उसके बाद एनालिसिस की मैंने कोई वैट में सेंटेंसेस बनाए, वो क्वालिटी सेंटेंस, तो उसके क्या मॉडल आंसर्स हो सकते हैं। तो ऐसे मेरे लगभग 300-400 वर्ड्स प्रिपेयर हो गए थे, जिसके मेरे मॉडल आंसर्स रेडी थे। और सिमिलर फॉर द टैट एंड एसआरटी ऑल्सो। तो एक अच्छा सा एक मैकेनिज्म तैयार हो गया था, जिससे मैं साइकोलॉजी पार्ट को काउंटर कर सकता था। यस सर। सो टैट, बिगिनिंग फ्रॉम टैट, टैट में एज 11+1, 11 इमेजेस आती हैं और 1 ब्लैंक इमेज। सो द ऑल द इमेजेस हमारे बैच में जो थी, इट वाज रियली फैमिलियर, और बहुत सारी इमेजेस रिपीटेड थी जो इंटरनेट पे मिलती है या वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करती है। तो कोई भी ऐसे इमेज नहीं था जो आउट ऑफ द बॉक्स। और बहुत सारे इमेजेस तो सर ग्रुप में ही था, जो वीडियोस वगैरह थी उसी में से बहुत रिलेटेड था, 4-5 शायद, आई गेस। यस सर। तो इसमें मैं इजीली कंफर्टेबली स्टोरीज बना पाया था। टाइम पे हो गई थी स्टोरीज वगैरह सारी कंप्लीट सर। सो 30 सेकेंड्स टाइम मिलता है और 4 मिनट में हमारे को सारी स्टोरीज लिखनी पड़ती है। तो टैट के लिए सर वन थिंग आई सजेस्ट कि इम्पोर्टेंट है कि हम जो बीच में जो एक्शंस है वो इनको डालें, कि ये चीज हो रही है तो इसमें क्या क्या एक्शंस किए। मान लो मैं कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ बनाता तो उसमें उसने कैसे कैसे इंप्रूव किया। कोई इंटरव्यू के लिए मतलब कोई ऐसा बना रहा तो इंटरव्यू में उसने क्या 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 मॉक टेस्ट दिए, उसने इंटरव्यूज दिए, उसने इनसे गाइडेंस ली, ऐसा ऐसा। तो हम ये चीज इंक्लूड करेंगे तो वो बहुत बेनिफिशियल रहता है सर टैट की स्टोरीज में। एंड तो ऑल स्टोरीज आई मेड हो गया था वो अच्छे से। एंड आफ्टर दैट वैट, वैट में 60 वर्ड्स थे और 15 सेकेंड्स ईच। और बीच में सर 15-20 वर्ड्स के बाद गैप मिल रहा था 15 सेकेंड्स का। तो वो मैंने प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं किया था, उसमें डायरेक्ट में 60 वर्ड्स करता था 15-15 सेकेंड्स के। तो ये जो गैप 15 सेकेंड्स का, ये बहुत बेनिफिशियल था, क्योंकि कोई वर्ड सेंटेंस में कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। तो वो मैंने इजीली इसमें कर लिया था सर। तो मतलब प्रैक्टिस करके वैट आप, वाला लाइक पार्ट भी गुड। प्रैक्टिस करके यू विल बी एबल टू इजीली फेस दो सिचुएशंस, राइट? का मतलब आपके क्वालिटी वर्ड्स बन रहे थे बिकॉज आपने प्रैक्टिस की थी उन सेंटेंसेस की, वर्ड्स की, राइट? एग्जैक्टली सर। यस सर। यस सर, क्योंकि मैं 7 सेट लगा के गया था, तो टेक्निकली इट वाज माय एट्थ एट्थ टेस्ट। तो वो मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन थी। और वर्ड्स वगैरह बहुत रिपीट हुए थे सर, जो भी मैं टेस्ट लगा के गया था वही वर्ड्स रिपीट हो रहे थे, और वो सेंटेंस क्लियरली मेरे दिमाग में आ रहे थे, मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा था। तो वो इजीली हो रहे थे। तो आई अटेम्प्टेड 60 वर्ड्स, सारे 60 वर्ड्स हो गए थे, और काफी सही मतलब वर्ड फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन हो गए थे सर। Yes, sir. So this was the VAT part, and after that SRTs के हमें बुकलेट डिस्ट्रीब्यूट हुए उसके बाद। अब फॉर टेट, जैसे कि अब लाइक आपको कोई पिक्चर्स याद हो, क्या पिक्चर्स थी, कैसे क्या सीन था? एनी आइडिया यू गाइस यू हैव? कुछ याद हो, कुछ पिक्चर्स दिमाग में हो आपके? यस सर। सर पहली पिक्चर हमें थी, आई डोंट रिमेम्बर द करेक्ट सीक्वेंस, बट ये पिक्चर्स मुझे व्हाटएवर। याद है। तो रिफ्लेक्शन, मिरर रिफ्लेक्शन वाली थी, 1 पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, वो वाली इमेज थी। नेक्स्ट एक क्राउड था। सो सम एक क्राउड था, उसमें कुछ एक्टिविटी चल रही थी। तो आई मेड लाइक कि यहाँ पे एक अवेयरनेस कैंपेन के लिए एक नुक्कड़ नाटक परफॉर्म हो रहा है, एंड so and so is my main character, and he is the president of the society of so and so college. So I made story on that line. So uske baad the next story was 1 person standing and a desert scene and one cannon is there. This was the third image, and after that a train, yes, a railway platform wala scene tha next image mein. The family was there to see off a person. He was on the train. So उसके ओके। बाद नेक्स्ट एक माउंटेन और जंगल का सीन था, फ्यू पर्सन वर देयर इन द सीन। सो माउंटेन एक्सपेडिशन वाला मैंने कुछ स्टोरी बनाया था। आफ्टर दैट एक शेडो सी थी सर, द इमेज was a bit hazy and only a shadow was visible in that image. मतलब बाकी पीछे डेजर्ट जैसा सीन था और एक शेडो जैसी दिख रही थी। एंड आफ्टर दैट मैन एंड वुमेन, एक सीन ऐसा था कि मैन वाज कमिंग फ्रॉम समवेयर एंड द वुमेन वाज वेटिंग एट द डोर फॉर हिम टू स्पीक, ऐसा कुछ स्टोरी थी। और लाइक उसके अगला नोटिस बोर्ड। the man is trying to get in the enter the room, right? And she was waiting at the यस gate सर। by opening some kind of scene, right? Okay. So यस that's सर, a यस quite यस, वो वाली स्टोरी थी। okay.
यस सर। और नोटिस बोर्ड वाली स्टोरी थी सर, वो तो रिपीट हुई थी, Comedy. पिछले बार भी आई थी। हाँ सर, Okay. नोटिस So, बोर्ड वाली स्टोरी। और यस सर। yes, sir. Can you tell what story you made? Any like picture you can take, and like just an example of board picture only. What story you made on the board? Yes sir. So If you have the few opportunity. students. Yes, sir. So few students was standing in front of a notice board and they were looking into it. So I made a story ki XYZ is my main character. Like I started like ki, for example, Ram, 18 years old. He's a school going boy, and recently his 10th result came, and he prepared really well. तो और थोड़ा मैं पास्ट में ले गया था कि for that he उसने क्या क्या efforts डाले थे उसमें, he prepared really well for that, and after that what were his plans, ऐसे मतलब past और थोड़ा present का उसमें थोड़ा actions डाल के और future में थोड़ा एक positive note में end किया था सर। और उसमें feelings थोड़ी सी डाली थी, क्योंकि instructions में clearly बताया था कि you have to tell what mood और feeling आपको उसमें character में दिख रहा है। तो my story was on that line sir. And any negative picture, if you can recall. No sir, negative as such कोई picture negative नहीं थी, but the shadow picture was quite neutral कह सकते हो। उसमें कोई expression feeling कुछ नहीं दिख रहा था, तो only black shadow was there, and पीछे एक desert जैसा scene था सर। बाकी as such कोई image नहीं थी। Okay, dead body की picture कोई snake stick नहीं something. सर, डेड बॉडी की भी पिक्चर नहीं थी सर। और एक रिपीटेड इमेज वो एग्रीकल्चर वाला सर, वो भी बहुत रिपीट होता है, इट वाज आल्सो देयर, एग्रीकल्चर वाला। और एक स्टूडेंट डेस्क पे बैठा हुआ है एंड ही इज थिंकिंग समथिंग लाइक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, ऐसा कुछ Okay. वो वाला इमेज भी था सर, वो भी रिपीट हुआ था सर। तो ये सारी इमेजेस थी सर, 11 इमेजेस। Okay. That's great. So now we can यस। move on. Wet. Like any words you remember. Wet. There's nothing too much to say on that because practice के ऊपर ही है, even you told earlier, right? So how was the wet? Like any words, some words if you can recall it. कोई याद नहीं आ रहा word? वैट का सर, उसके बाद जब मैंने प्रैक्टिस वगैरह की उसके बाद आई थॉट कि नहीं, वर्ड मुझे याद आ रहे सर। फ्यू वर्ड्स वर ब्यूटी, ब्यूटी, नेशन, लव। पॉजिटिव वर्ड्स भी थे, कुछ नेगेटिव वर्ड्स भी थे, और इसमें एक सर काम वर्ड्स करो ना, कॉमन थे। और इसमें दो तीन यस सेंटेंस सर। मतलब आपने क्या सेंटेंस बनाए थे? ब्यूटी, लव, इसमें व्हाट और सेंटेंस यस सर, सर लाइक नेशन वर्ड था, तो मैंने बनाया था माई नेशन माई प्राइड, ओके। ऐसे बनाया था सर। और डिफरेंट वर्ड्स वर देयर, आई एम अनेबल टू रिकॉल दैट वर्ड्स, बट मोर और लेस जो वर्ड्स थे वो बहुत सिमिलर लाइंस पे थे, जो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं। तो उनमें से कोई इजीली कर सकता है, जैसे लव फॉर नेशन इज पैरामाउंट, ऐसे वगैरह करके तो मैंने बना लिए What थे about वर्ड्स अच्छे, any negative word सेंटेंसेस। you can able to recall it? Any negative word you remember and can you make the sentence on that? Any negative word? हाँ सर, ये सर नेगेटिव वर्ड्स में मुझे सर एक वर्ड ने थोड़ा परेशान किया था, कि अनटचेबिलिटी वर्ड था। तो उसके Okay, लिए yeah. मैं थोड़ा सा हो गया था, क्योंकि वो मैंने कहीं प्रैक्टिस नहीं किया था अनटचेबिलिटी। तो मैंने फंडामेंटल राइट के आर्टिकल से रिलेट करके उसको थोड़ा वैसे बना दिया था। You show your ऑल्दो knowledge in that. इट इज नॉट रिकमेंडेड कि यस सर, कि फैक्ट वाला वैसे रिकमेंडेड नहीं रहता कि कोई फैक्ट डालें, क्योंकि उसमें हमारी साइकोलॉजी टेस्ट हो रही है, तो हमें अपनी साइक के अकॉर्डिंग देना है कोई उसमें। तो मैंने वैसा बना दिया था, क्योंकि थोड़ा वो डिफिकल्ट सा था सर। Untouchability was word, and dismissal was there. Dismiss was word, a negative word that I can remember. And Sharab, like we can practice those things, right? It's not like the more we practice, the more knowledge we'll get, right? Yeah, Okay. exactly, sir. Now I think we should move on SRT part. How was it? Yes, sir. यस सर, तो आंसर बुकलेट सेम में रहती है सर, और ये दो चीजें स्क्रीन पे फ्लैश हो रही थी, उसके बाद बुकलेट्स मिलती है एसआरटीज की। तो एसआरटीज की बुकलेट्स हमें अलॉट हुई, तो इशू हुई, तो आंसर शीट पे हमारे पास मार्किंग्स रहते हैं पहले ही, स्पेस गिवन फॉर एवरी 30 मिनट्स का टाइम था। तो मैं प्रैक्टिस करके गया था, तो आई वाज कॉन्फिडेंट कि मैं कर लूंगा। एंड मोर और लेस द सिचुएशंस वर आल्सो, मतलब कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं थी, इजी थी। और ज्यादा सिचुएशन सर ऐसा था कि पुलिस, जिसमें हम पुलिस की हेल्प ले सकते हैं और एम्बुलेंस एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हैं, ज्यादातर उसमें ऐसा ही था। एंड आई अटेम्प्टेड अराउंड 53 54 सिचुएशंस आउट ऑफ 60 सर। आई वाज एबल टू अटेम्प्ट दैट। So, any like what you suggest the candidates like what they should do to master that part?
SRT? Sorry. सर सबसे पहले, यस सर, तो मॉडल जो आंसर्स वगैरह इंटरनेट पे अवेलेबल है सर, वो बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि पहले सबसे पहले हम अगर अप्रोच करते हैं किसी भी टास्क के लिए, तो वो हमें एक डायरेक्शन देती है कि हमें कैसे रिस्पॉन्सेज लिखने हैं, और उसमें आगे जैसे कोई सिचुएशन दी है, उसके बाद हम उसका आंसर लिखते हैं, तो उसके बाद क्या होगा वो भी लिखना जरूरी है कि वी वर हेडिंग, मतलब एक ट्रैकिंग वाला सीन है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि हमारा कोई जो हमारा टीममेट है वो बीमार हो जाता है या कुछ भी, तो उसके बाद हमने उसको हॉस्पिटल किया, उसको फर्स्ट एड दिया, ये सब, लेकिन उसके बाद हमने जो हमारा टास्क था वो हम कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद हमारा टास्क कंप्लीट होता है, तो ये चीजें भी लिखनी जरूरी है उसमें सर, पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना जरूरी है, जो टास्क उसमें गिवन है उसको कंप्लीट करना, For ये एक example, इम्पोर्टेंट चीज थी सर। you are going from Himachal to New Delhi in train, and you lost your यस wallet. सर। What actions you will take? यस सर। What you will do in that scenario? यस सर। हाँ, ऐसी भी सिचुएशन, ट्रेन्स वाली भी सिचुएशन थी, तो इसमें सबसे पहले ये कि सर ऑनलाइन भी लॉस्ट एंड फाउंड का आता है, उसमें हम डाल सकते हैं, सबसे पहले तो वहाँ पे जो लोग हैं हम उनसे पूछ सकते हैं कि हैव यू सीन, तो वो कर सकते हैं, और जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है वहाँ पे उनके स्टेशन पे हम कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं, तो ये बेसिक रहेगा सर। Oh, great. Sure. And what about SD? SD is like totally like they are better to write in the points or in सर the sentence. एसडी का, नो सर, आई डिड माई एसडी इन पैराग्राफ फॉर्म ओनली, Yeah. तो पैराग्राफ में ही बेटर रहेगा सर, क्योंकि मैंने लिखूंगा, बट पॉइंट में ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, और एसडी में सर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लास्ट टाइम मैंने ऐड किया था, इट वाज कि एक नेगेटिव नेगेटिव या कोई ऐसी चीज, क्योंकि कोई भी रिलेशन या कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है, हर एक चीज में देयर इज अ स्पेस फॉर इम्प्रूवमेंट, तो जैसे कि हम पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स, सेल्फ, फ्यूचर सेल्फ में लिखते हैं, तो जैसे माय पेरेंट्स यूजुअली कॉल मी कि आई स्पेंड लेस मनी, तो आई आई रोट इन दैट कि माय पेरेंट्स यूज्ड टू टीज मी कॉलिंग मी माइजर, कि मैं थोड़ा Right. कंजूस हूँ, तो Understood. ऐसी ऐसी चीजें मैंने ऐड करी थी, मतलब ट्रू थी, जैसे फ्रेंड्स में कि देयर आर a few moments are there when we have ideological clashes, but we discuss things and we come on a good conclusion, तो ऐसे पार्ट्स वगैरह मैंने लास्ट में ऐड किए थे सारे उसमें, तो ये भी एक अच्छा वो करता है सर, इन्फ्लुएंस एसटी के लिए अच्छा रिस्पॉन्स बनता है सर इससे। Okay, sure. So now I think we're done with यस। the psych part, right? So now we'll move to the GTO. So, Sharab, I यस think you take rest for 5-10 minutes. Okay. Then we'll go 10 minutes. We'll यस start at 10 p.m. Okay. Fine. यस सर, ओके सर, राइट Okay. The सर। next part will wind up in 30-35 minutes. That's a short only, not much. Okay, na? राइट Chalo. सर। See you. ओके सर। I'll ओके। send you the link at 10. Okay. Chalo. Take care. राइट सर। Okay, Sharab. So the next part is about your GTO, right? After that site यस test सर। was there, right? So यस सर। tell us, start. Mhm. Yeah. So the group task is basically divided into two parts: indoor GTO and outdoor GTO, sir. So Okay. outdoor GTO में CGSB नोएडा में FSB में only two tasks are there. एक ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस जो स्नेक रेस है, और इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल सर, और बाकी जो पीजीटी एंड ऑल है वो अभी बना नहीं है, बट वो कह रहे थे कि नियर फ्यूचर में वो जल्दी बन जाएगा, तो Hmm. फिलहाल स्नेक रेस एंड इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स आर देयर इन आउटडोर जीटीओ। एंड अबाउट इंडोर जीटीओ में सर जैसे जीडी रहते, टू जीडीज आर देयर, फर्स्ट जीडी में दो टॉपिक्स मिलते हैं, एंड द होल ग्रुप हैव टू डिस्कस कि कौन से टॉपिक पे हमने जीडी करनी है, तो आफ्टर दैट सेकंड जीडी रहती है, सेकंड जीडी में वो टॉपिक जीटीओ एसेसर जो होता है वो खुद देते हैं, और वी हैव टू डिस्कस ऑन दैट, और उसके बाद ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज इज देयर, जिसमें, और मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज बोलते हैं जिससे, तो उसमें एक सर्टेन सिनेरियो इज गिवन, कंडीशंस एंड फ्यू प्रॉब्लम्स आर देयर, एंड वी हैव टू प्रायोरिटाइज दैट प्रॉब्लम, एंड वी आर अ ग्रुप ऑफ फ्यू पीपल, तो हमें उसे सॉल्व करना रहता है, एंड आफ्टर दैट लेक्चरेट इज ऑल्सो देयर, तो लेक्चरेट में वी हैव टू डिलीवर अ लेक्चर, we were given a few topics on a card and we have to select one among four, so we have to deliver that, so ये हमारा सर सेकेंड डे हुआ था, और फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट एंड सेकेंड डे आफ्टर रिपोर्टिंग, तो उसमें हमारा साइक और इंटरव्यू भी हमारा फर्स्ट डे ही हो गया था, फर्स्ट बैच अल्फा ग्रुप के थे हम, तो उसी दिन हमारा इंटरव्यू हो गया था, तो आफ्टर दैट जीटीओ
Hello, तो Sharab, your video got stuck. वाले पार्ट में Yeah, Sharab, like before you proceed, I have some नाउ इट्स questions. क्लियर. Yeah, यस audible. सर. यस Some सर. interpretation maybe. Okay, so यस सर. in GD1 and G2, do you remember topics? What topics they gave you? यस सर. सर सो GD1 में दो टॉपिक्स हमें मिले थे. द फर्स्ट टॉपिक वाज दैट has become the fifth largest economy. So इसके क्या क्या pros and cons है, मतलब क्या reasons और क्या consequences होंगे. तो इसमें जो leads थे, तो the first lead was political stability in the country. The second was foreign direct investment, and the third lead was economic policies of the nation. तो ये तीन Okay. लीड्स थे सर. एंड द सेकंड वन वाज चंद्रयान 3 के ऊपर था, तो उसके प्रोस एंड कॉन्स के ऊपर था. तो आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट लीड्स, क्योंकि हमने ये वाला टॉपिक नहीं सिलेक्ट किया था. तो वी सिलेक्टेड, वी डिस्कस्ड, द ग्रुप डिस्कस्ड, एंड वी केम टू एन कंसेंसस कि वी विल हैव आवर जीडी on the first topic, that was economy wala ki why India became the fifth largest economy, what are the pros and cons. So second GD was the topic was development of sports in India. तो इसके Okay. क्या क्या रीजंस और क्या क्या फ्यूचर, मतलब क्या क्या रीजंस और फ्यूचर में क्या प्रोस्पेक्टिव्स हैं. तो उसके लिए थ्री लीड्स वर गिवन. The first lead was awareness of sports in the country. The second was the various schemes, government schemes and policies, and the third was infrastructure development for various sports and games. तो ये दो जीडी के टॉपिक्स थे सर. So, तो Sharab, सर जीडी total, ओवरऑल वाज रियली गुड. okay, total 9 लोग थे आपके यस group सर. में, right? So how was it, like यस chaos? सर. ग्रुप Like what do you 9 think? ग्रुप. What was the important thing that candidates should stress into, like knowledge or like the way of communication? On there's a lot of things come into play, like how people are having discussion on the particular topic, like they're giving their own opinion or यस सर. general opinion, and or something. They people like Some यस people सर. like are very aggressive when they're putting up their points. Like just let's just dive into it a little bit. So एग्जैक्ट. please. यस सर. यस सर. सो अनलाइक द पीपीडीटी वाला डिस्कशन पार्ट सर, सो उसमें क्या था कि वी वर एलियन टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स और कैंडिडेट्स. तो इसमें ये था कि वी स्पेंड 2 नाइट्स टुगेदर, और हमारा वन चेस नंबर 1 से 9 तक एक ही ग्रुप था, एंड वी 8 वर इन द सेम रूम. तो हम एक ही रूम में थे, तो हम काफी वर्ड्स एक्सचेंज हुए. हम वी गॉट टू नो ईच अदर. हम जेलअप हो गए थे आपस में अच्छे से. तो हमें एक्सपेक्टेड था कि कौन की, मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया था कि कौन कैसा बोल सकता है, क्या जीडी में होगा, क्योंकि रिगार्डिंग इट्स पास्ट एक्सपीरियंस और जैसा बिहेवियर रहता है. तो द जीडी वाज रियली गुड, बिकॉज सबका फर्स्ट कॉन्फ्रेंस था, फर्स्ट जीडी थी मैक्सिमम लोगों की, एंड इट वाज माय वेरी फर्स्ट जीडी. बिकॉज साइकोलॉजी पार्ट वाज आई वाज प्रैक्टिसिंग, बट जीडी के लिए मैं प्रिपेयर डिस्कशन नहीं कर पाया था. बट आई वाज ग्रास्पिंग इन्फॉर्मेशन एंड फैक्ट्स, बट आई वाजंट एबल टू लाइक मैनिफेस्ट इट, मतलब बोल नहीं पा रहा था. तो आई वाज प्रैक्टिसिंग अ बिट इन फ्रंट ऑफ मिरर, और कुछ फ्रेंड्स के साथ मैंने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया था. बट द ओवरऑल जीडी, दोनों जीडी वाज रियली गुड, बिकॉज ऑल द पार्टिसिपेंट्स वर रियली काम, एंड उनका फर्स्ट रिपीटर्स कोई नहीं थे, तो ऐसा ज्यादा फिश मार्केट क्रिएट नहीं हुआ सर. शुरू में फर्स्ट 40 सेकंड में होता ही है, सब बोलने लग जाते हैं एकदम से. तो वो हुआ. बट आफ्टर दैट वही वाली चीज कि धीरे धीरे अपने पॉइंट्स रखने हैं. और जब थोड़ा सा भी टाइम मिल रहा था टॉपिक के बाद, तो आई वाज जस्ट रिमेम्बरिंग द पॉइंट्स कि मैं क्या क्या पॉइंट्स ऐड ऑन कर सकता हूँ. और मैंने पीपीडीटी में सीखा था कि आई हैव टू गिव डायरेक्शन टू द डिस्कशन, कि जो भी डिस्कशन होगा, डिस्कशन एक साइड मैंने पॉइंट्स देने हैं, बट आई हैव टू टेक ग्रुप डिस्कशन इन हेल्दी वे ऑल्सो. तो मैंने जो जो पार्टिसिपेंट्स पार्ट नहीं ले रहे थे, आई ऑल्सो मेंशन देम कि चेस नंबर XYZ वी हैव गिवन इनफ पॉइंट्स, बट वी शुड ऑल्सो गिव देम चांस, ऐसा करके. एंड आफ्टर दैट अलग अलग डायमेंशंस देना डिस्कशन में बहुत जरूरी है. लाइक आई वाज सपोर्टिंग in the first GD, I was supporting the economic policies. तो economic policies को various dimensions of fact के साथ आप emphasize कर सकते हैं. Like India became the most populous country this year, और G20 presidency इस बार. तो Correct. ये सारी चीजों से refine हो रहे थे points. And I also emphasized on refining others points also. जैसे कोई point दे रहा था, like दूसरों का था political stability के ऊपर. So I was quoting him that chess number 1 gave valid point, and I appreciate it, and I also want to add and refine his point by adding a few more points. तो मैं अपना पॉइंट उसमें सिविलाइज कर रहा था, विदाउट लाइक कंप्लीटली काउंटरिंग द अदर वन.
तो ये सारी चीजें थी सर। और अच्छा चला हुआ था, जीडी बहुत ही हेल्दी था। और मैंने जितने पॉइंट्स रखने थे काफी मतलब अच्छे एम्फेसिस के साथ रखे, और फैक्ट्स मैंने इंक्लूड किए, वेरियस स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स में फोकस किए। मतलब मैं याद करके गया हुआ था, वो मैंने पॉइंट्स डाले। तो जीडी वाज हेल्दी सर, बहुत अच्छा डिस्कशन था, और सबने पार्टिसिपेट किया था, हमारे 9 आउट ऑफ 9 कैंडिडेट्स दोनों जीडी में सर। Okay, what about GPE now? How was the GPE? And ये like सर। they are you guys able to come to any conclusion? ठीक है, and you able to select your leader, and leader was efficiently putting up his group point in front of the assessor. How was it? एग्जैक्टली। So the group planning exercise is designed in such a way, जब मैंने सबसे पहली बार अप्रोच किया था, तो मैंने इसमें देखा था कि क्या, व्हाट इज द डिमांड ऑफ दिस एक्सरसाइज, ये हमसे क्यों करवाया जा रहा है जीटीओ में। तो आई गॉट टू नो कि ये चीजें हैं कि अगर आपको बहुत मल्टीपल टास्क मिले तो आप कैसे उस चीज को कर पाते हैं। तो सबसे पहला पार्ट इज यू हैव टू राइट द सॉल्यूशन, एंड उससे पहले वी हैव टू ग्रास्प द सिचुएशन कि क्या उसमें प्रॉब्लम्स है, कि हम कोई चीज मिस आउट ना करें। तो मैंने सबसे पहले ग्रास्पिंग पे ध्यान दिया, कि जो रीडिंग है, रीडिंग वाला पार्ट अच्छा हो, जो नरेट हो रही है जब हमें प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, तो वो हम अच्छे से करें। एंड उसके बाद मैं अच्छे से लिख पाऊँ, उसमें भी इंस्ट्रक्शंस वर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा सर, इंस्ट्रक्शंस में जैसा कि बताया जा रहा था जीटीओ के द्वारा, कि जो जो चीजें मेंशन करनी थी वो होनी थी, लाइक कन्वेंशनल मेथड जो है। लेकिन उसके बाद एक मुझे चीज अलग लगी, जो मैंने पहली बार देखी, कि आफ्टर Mm-hmm. राइटिंग ऑल द सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम, हमें एक अंडरलाइन करना था, एंड वी हैव टू साइन, सबसे नीचे साइन करना था। तो आफ्टर ऑल दिस जीटीओ, मैंने कुछ स्टूडेंट से पूछा कि तुमने लाइन खींच के साइन किया था, जीटीओ साहब ने बताया था। तो बहुत Mm-hmm. स्टूडेंट स्किप कर गए थे उस पार्ट को। तो मुझे लगता है Exactly. कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत काम करना, मतलब उस टाइम पे होता है कि आप कितना एक्टिवली आप सुनते हो अपने Observation. इंस्ट्रक्शंस को, क्योंकि ये सर, क्योंकि डिफेंस फोर्सेस में सर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपके सुपीरियर्स की इंस्ट्रक्शंस को सुनने का। तो दैट थिंग मैंने बहुत अच्छे से किया था, जो भी इंस्ट्रक्शन मिल रहे थे माइन्यूटली हमने फॉलो करनी है उन चीजों को। और जीपीई में सर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। आई ऑल्सो प्रैक्टिस जीपी अलॉट, मैंने भी 6-7 Okay. जीपी पहले लगा के गया था। Mm-hmm. तो इट वाज माय लाइक 8th और 9th जीपी, उसमें सिमिलर जैसा होना है जीपी, मैं वैसे ही प्रैक्टिस करता था उन चीजों को। तो उसमें जीपी में वैसे ही 4 प्रॉब्लम्स थे मेजर, एक इंजर्ड पर्सन था, और एक ट्रेन डीरेलमेंट वाला मिसक्रिएंट्स होते हैं उसमें, ये बेसिक प्रॉब्लम। और एक स्कूल बस थी, इट वाज स्ट्रैंडेड ऑन सम ब्रिज एंड वाटर लेवल इज राइजिंग, सो वी हैव टू डू द, मतलब वो भी एक प्रॉब्लम थी। एंड आफ्टर दैट एक बोट, फिशरमैन की बोट थी, वो डैमेज हो रही थी, सम मिल वाज देयर, इट वाज कोलैप्सिंग ऑन इट। तो ये वगैरह थी। तो और दूसरी चीज सर, जो राइटिंग में जो हम सॉल्यूशन देते हैं, तो इट शुड बी कंसाइज। अब मिलिट मतलब एकदम से कोई सिचुएशन है, तो उसकी द सॉल्यूशन शुड बी वेरी क्रिस्प। तो रादर देन Correct. जॉटिंग ऑल दैट थिंग इन वन पैराग्राफ, तो मैंने प्रेफर किया कि उसको पॉइंट्स में लिखा जाए। सबसे पहले मैंने लिखा कि एम, व्हाट इज द एम, सबसे पहले वी हैव टू कंप्लीट आवर एम। तो एम के साथ साथ आई लाइक गिव बुलेट पॉइंट्स की प्रायोरिटी 1, व्हाट इज द प्रॉब्लम, एंड ऐसे ऐसे। उसके बाद आई रोट 2 लाइंस की वी डिवाइडेड द group into a few subgroups, and all the solutions were like executed simultaneously। तो उसके बाद सारे ग्रुप्स के solutions, और लास्ट में फिर हमने कंक्लूडिंग 2-3 लाइन में कंक्लूड करके फिर आई wrapped up the whole that part। तो ये रिटर्न पार्ट एंड डिस्कशन पार्ट वाज दैट। और इसमें इंपॉर्टेंट है सर, हिडन जो रिसोर्सेस हैं उसका यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने पार्ट मिस किया। एंड आई लर्न फ्रॉम दैट डिस्कशन। उसमें जो स्टूडेंट्स थे डिस्कशन में, जब मुझे पता लगा कि हिडन रिसोर्सेज का वो बहुत अच्छा यूज कर रहे थे, तो मैंने जब डिस्कशन में पार्ट लिया, तो वो बता रहे थे कि यहाँ से हम रिसोर्सेज और गैदर कर सकते हैं, जो कंप्लीटली विजिबल नहीं थे उस सिनेरियो में, बट वो हो सकते थे। तो बाकी डिस्कशन वाज आल्सो हेल्दी, मतलब 2 कैंडिडेट्स को छोड़ के एवरीवन वाज पार्टिसिपेटिंग। और हुआ ये कि जब कंसेंसस की बात आई और एक कॉमन स्टोरी नरेट करने की बात आई, तो वन ऑफ, आई डोंट रिमेम्बर द चेस मेंबर, तो ही गेव समवन एल्स नेम, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि किसी और को करना चाहिए था, हु हैव गिवन मोर पॉइंट्स, तो मुझे ऐसा लगा था। तो बाद में उसने किया था। तो इट वाज गुड सर, नरेशन पार्ट ठीक था, बट द जीटीओ वाज नॉट सेटिस्फाइड बाय हिज नरेशन, the final narration. So he asked someone else if anyone else can come and do Okay. the narration. So the other candidate also got up, and he gave the narration. So like in this way, our GPE was concluded. So Great. What about the lectures? Lecture it. Like, do you remember any topics? यस सर, तो द प्रोसीजर वो सर, सबसे पहले जीडी हुए थे 2 टॉपिक, उसके बाद जीपी, उसके बाद स्नेक रेस के लिए चले गए थे सर हम। Okay. तो Okay. So हाँ,
ये सर साइमल्टेनियसली 3 ग्रुप्स के भी चले हुए थे ये सारी चीजें अलग अलग हॉल्स में। तो उसके बाद वी ऑल द 3 ग्रुप्स वेंट फॉर स्नेक रेस। तो स्नेक रेस के बाद हम लेक्चरेट के लिए आए थे, और लेक्चरेट से पहले देयर वाज इंट्रोडक्शन पार्ट कि हमें वी हैव टू डू सम इंट्रोडक्शन कि फ्रॉम वेयर, व्हाट इज माय नेम, फ्रॉम वेयर आई बिलोंग, और ये हॉबीज वगैरह क्या है। तो उस टाइम एक इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहूंगा कि जब मेरा इंट्रोडक्शन आया तो आई वाज टेलिंग कि सिंगिंग इज माय हॉबी। तो जीटू साहब वाज लाइक कि प्लीज सिंग अ सॉन्ग फॉर अस, सिंग अ सॉन्ग फॉर अस। तो यस सर। तो आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बट आई थॉट कि मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, तो मैंने सीधा पूछ लिया कि आई यूजुअली सिंग फोक सॉन्ग्स, तो शैल आई सिंग फोक सॉन्ग? बोले नहीं, you can sing a Hindi song that we can understand. So I sang a song. So he was all good. So I sat down and the lecturate process was going on. So I was chest number 6. So from chest number 1, he gave the instruction twice. So instructions are very much important because कोई भी अगर instruction miss कर रहा है तो he was marking that on a sheet कि मतलब the presence of mind, ये सारी चीजें वहाँ टेस्ट हो रही थी साथ में। तो जब मेरी बारी आई, I got up and I took the slip, and there were 4 topics mentioned in my slip. The first one was generation gap. Generation gap के ऊपर मैंने बोला था, and the next was US China relationship, and the next was National Green Tribunal and Okay. World Health Organization. ये 4 टॉपिक्स थे सर। यस सर। तो आई डिड नॉट हैव मच पॉइंट। मुझे लगा कि मैं अगर ऑर्गेनाइजेशन की उसकी ओर बोलता हूँ तो मैं मतलब कोई अपने पॉइंट्स नहीं बोल पाऊंगा, और इतने फैक्ट्स मेरे पास एग्जैक्टली है नहीं। तो आई चोज द जनरेशन गैप वाला टॉपिक। सो आई डिलीवर्ड द लेक्चर, आई डिलीवर्ड इट फ्लुएंटली। तो अच्छा हो गया था जी। लेक्चर इट वाज आल्सो गुड। सारे जो कैंडिडेट्स हमारे ग्रुप के, दे डिड वेल इन द लेक्चर पार्ट। Okay, great. Sharab. Now, what was it like? Only GTO में snake race ही हुआ, individual obstacles और कुछ? सर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल नेक्स्ट डे हुआ था सर। उसके बाद स्नेक रेस के लिए ले गए थे जीडी के बाद, जीडी जीपी के बाद उसके बाद आके लेक्चरेट हुआ था। और लेक्चरेट के साथ में सर हाँ उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट डे हुआ था सर, ये क्या कहते हैं, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। और कमांड Okay. टास्क के लिए 2 बंदे रिकमेंड करने थे सर। हाँ अच्छा। उन्होंने ये कहा था कि अगर आपका कमांड टास्क होता है तो आप हम्म। ऐसे कौन से 2 चेस नंबर है जिनको आप रिकमेंड करोगे कमांड टास्क के लिए। तो वो ऐसे हाँ. पूछ रहे थे जब आप टॉपिक लेके जा रहे थे उनके पास। ये सर। Okay, great. So now I think we can move on the next part, which is interview. We can now give about the interview. Interview is very, ये very सर। important, right? Part of SSP. Please. ये सर। Which room ये number सर। you went? सर इफ यू अलाउ मैं थोड़ा हाँ, इफ यू अलाउ मैं थोड़ा इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल का भी एक बार बता देता हूँ। हाँ, प्लीज. क्योंकि वो वाला पार्ट भी सर इक्वली इम्पोर्टेंट था। क्योंककि इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल सुबह 5 बजे हुआ था। हम गए थे शाम को, मास्टर में हमें बता दिया गया था। तो सुबह जल्दी गए थे। तो उसमें ये कि सर कैंडिडेट्स जल्दी करने के चक्कर में, सारे ऑब्स्टिकल्स क्लियर करने के चक्कर में अपने आप को इंजर्ड कर लेते। तो वो वाला पार्ट थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह, फिजिकल एजिलिटी इज ऑल्सो नीडेड। क्योंकि सारे ऑब्स्टिकल्स अगर आप वन गो में कंप्लीट कर रहे हो तो उसमें आपका स्टेमिना और स्ट्रेंथ लगता है। तो ये भी इक्वल इंपॉर्टेंट है कि हम अपने मेंटल स्ट्रेंथ और नॉलेज के साथ साथ हम थोड़ा फिजिकली भी थोड़ा एजाइल और एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। तो वो भी एक अच्छा पार्ट है, क्योंकि उसमें भी असेसमेंट होती है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेमिना, और जो डायनामिक पार्ट है इसका OLQs का, तो वो भी टेस्ट होते हैं सर उसमें। ये सर। तो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल के बाद हमारा इंटरव्यू तो फर्स्ट डे ही हो गया था। तो फर्स्ट डे ऑफ असेसमेंट एंड सेकंड डे आफ्टर रिपोर्टिंग सर। अच्छा, मतलब तुरंत कर दिया था उन लोगों सो ने, लाइक फॉर ऑल दोस एग्जाम्स, राइट? साइक साइक के बाद ही हुआ होगा ये ना सर। जो? हाँ सर, हमारा फर्स्ट बैच था अल्फा ग्रुप, तो हमारा फर्स्ट डे में ही हो गया था सर, साइक वाला पार्ट भी और इंटरव्यू भी। अच्छा, सेम डे में हो गया था आपका? मॉर्निंग में आपका साइक हुआ होगा, शाम तक आपका इंटरव्यू सेम, शाम को इंटरव्यू और अगले दिन GTO 1, और उसके अगले दिन सर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। तो हम लगभग 2 दिन फ्री थे, कुछ था नहीं करने को, तो 2 दिन वहीं पे ऐसे मस्ती कर रहे थे सर। ओके, ओके. नो, सो दैट इज ये यूजुअली होता है. तो आपका सो यस सर। गाइस, देयर इज नो फिक्स डेट एंड टाइम. दे कैन कॉल यू एट एनी टाइम फॉर द इंटरव्यू, नॉट नाइट स्पेशल ऑब्वियसली. Okay. So, राइट सर। यस okay, सर। so now, Sharab, now I think we should move towards the interview part. Like which room number you यस सर। went, and what was यस the सर। officer, what kind of question he asked? He asked more into technical,
related to your place, like your profession or education? What all things he Yes, sir. asked about? Yeah. So, talking about the interview, so the individual जो interview रहता है, so it is also a major pillar of important 3 pillars में से एक pillar है जो बहुत ज्यादा important role play करता है, और एक ऐसा point जहाँ पे बहुत nervousness ही feel होती है एक्चुअली सारे assessment process में. The most important part और जिसमें मैं nervous हुआ था तो it was interview. So my interview was on the 4th floor, 402 room number. तो उससे पहले भी वहां पे इंटरव्यू हुआ था मेरे से, जो पहले चेस्ट नंबर्स थे उनका उसी रूम में इंटरव्यू हुआ था. तो वो जैसे ही रूम पे आए तो वी वर आस्किंग कि हाँ. कैसे कैसे चीजें पूछी गई. तो वी वर आस्किंग, तो उसने बोला कि ओनली पीआईक्यू, नथिंग एल्स. तो सिर्फ पीआईक्यू पूछ रहे हैं, हम फ्रेशर हमसे कुछ नहीं पूछेंगे. तो आई वाज रियली हैप्पी क्योंकि मैं डिफेंस नॉलेज वगैरह थोड़ा कम. ऑल एम ऑडिबल सर? Now clear. Okay, start. Yeah. हेलो. Yes, Yes, sir. I'm listening So, almost. sir, interview. Yes, sir. Interview part. It was on the 4th floor, 402 room number. So I was a bit nervous about that, and I entered the room. I wished the interviewing officer. So he greeted me uh, a very in a very uh, comfortable manner, and I took I asked him, wished him. तो उन्होंने बोला कि बैठ जाइए. तो my interview began. तो he started from मेरे नाम से शुरू हुए, sir. What is your name and what is the meaning of your name? So I said my name is Sharab and it is basically a Tibetan word which means knowledge. तो जैसे ही Tibetan word आया तो वो सीधा switch कर गए Tibet वाले issue में कि what is the Indo China and China Tibet issue. तो थोड़ा Starting से brief में मैंने उसके बारे में बताया. हाँ सर, ये वाला पार्ट था जो थोड़ा सा आउट ऑफ पीआईक्यू था. बट आई वाज प्रिपेयर्ड कि मुझे था कि ये पूछ सकते हैं रिलीजन से और थोड़ा रिलेटेड. तो मैंने बताया कि ऐसा ऐसा है, बुद्धिज्म का थोड़ा पूछा. तो उसके बाद फिर पीआईक्यू पे जंप कर गए. बीआईक्यू में बेसिकली सीआईक्यूज पे ज्यादा जोर था, जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चनर रहता है. तो उसमें 3 सीआईक्यूज बेसिक मेरे से पुट अप हुए इंटरव्यू में. फर्स्ट, उसमें क्या क्या परसेंटेज मेरी थी, विच वर द सब्जेक्ट्स आई चोज, वेरियस स्टेजेस, कौन कौन से सब्जेक्ट चूज किए और क्या उनके रीजन थे, और कौन सा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था और कौन सा नहीं था तो क्यों, नहीं तो क्यों. और आफ्टर दैट मैंने कौन कौन से टीचर्स मेरे फेवरेट है, किन टीचर से पढ़ा हूँ मैं, कौन से फेवरेट है नहीं है, और क्या क्या प्रॉब्लम फाइनेंस मतलब मेरे एजुकेशन को फाइनेंस करने में आई. तो ये पूछे. फिर उसके बाद मैं फंबल हो गया काफी क्वेश्चंस में क्योंकि आई वाज नर्वस एट द टाइम. बट उसके बाद मैंने कहा कि आई सेड कॉन्फिडेंटली कि सर आई एम अनेबल टू रिकॉल द सीक्वेंस करेक्टली, कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चंस. तो 2-3 बार ऐसे पूछा मैंने, तो ही वाज लाफिंग. ठीक के ऊपर हुए कि ये किया है तो क्यों किया है, जैसे We are not able to hear you. Some network issues there. I know. Hello. मैंने चेंज की थी स्ट्रीम आफ्टर. यस सर. एम आई ऑडिबल सर? Some हेलो. network issues there. Yeah, you are audible, but some lag is coming. Your internet is working fine. नो सर, इंटरनेट कनेक्शन इज गुड सर. Do There one should be thing. some technical glitch, I think. Okay, now fine. I think so. Yes, please start. Yeah, tell me from where you left. Fine, sir. Yes, Yeah. sir. Yes, sir. So I was in the CIQ part. तो एजुकेशन वाला CIQ हुआ तो उसके ऊपर काउंटर क्वेश्चंस हुए. एंड मोस्ट ऑफ द काउंटर क्वेश्चंस वाज कि मैंने जो भी डिसीजंस लाइफ में लिए हैं अभी तक, तो वो मैंने क्यों लिए हैं, उसका कोई सॉलिड प्रूफ और एक सब्सटेंटिव रीजन, उसका बहुत मतलब बहुत रीजनिंग और वैलिड रैशनल उसके Mm-hmm. पीछे क्या था कि मैंने ये स्विच किया तो क्यों किया, ये करियर ऑप्शन किया तो क्यों किया. और मैंने अगर डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना ही था, इफ आई वाज दैट मोटिवेटेड टू ज्वाइन डिफेंस फोर्सेस, तो मैंने दूसरे एंट्रीज क्यों नहीं दिए, मतलब लाइक सीडीएस एंड ऑल. तो मैंने बताया कि आई गिव दिस एंट्री एंड उसके बाद आई वाज अनेबल टू क्लियर द सीडीएस एग्जाम. तो ये Mm-hmm. सारी चीजें मैंने बोली. तो उन्होंने बोला कि नाउ व्हाट आर यू डूइंग. अब आपकी उम्र बढ़ रही है, नाउ यू आर
फिर उसके एक्सपेंस पे आ गए कि फैमिली से कितना एक्सपेंस मिलता है क्या है, तो वो बोल रहे हैं कि आगे कुछ करोगे, ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ाते वैसे। तो आई वॉज प्रिपेयर फॉर दैट, मैंने क्वेश्चन लिखे थे। तो जैसे कि मैंने बताया कि सारे पीआईक्यू में जो पॉइंट्स थे उसके ऊपर मैंने क्वेश्चन बना के गया था, कि जैसे इनकम के ऊपर या जो भी मैंने सब्जेक्ट चेंज किए, तो ये था। उसके बाद नेक्स्ट सीआईक्यू वाज बेस्ड ऑन माय फैमिली, कि फैमिली में मेंबर्स, उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, उनके ऑक्यूपेशन, और मेरा क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन माय फैमिली, और हु इज माय क्लोजेस्ट, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं किसके पास जाऊंगा, और कोई ऐसा इंस्टेंस इन चीजों को सपोर्ट करने के लिए, और फैमिली से रिलेटेड। और फिर क्रॉस क्वेश्चंस हुए सर इसमें, कि मेरे क्लोज क्यों हैं ये, और मेरे डिसीजंस फैमिली को रिलेटेड और क्या इम्पैक्ट करते हैं मेरे डिसीजंस, ये वगैरह सर। तो आफ्टर दैट उसके बाद लास्ट आया फिर हॉबीज और इंटरेस्ट सर। एंड अगेन सेम, मेरे हॉबीज इंटरेस्ट बताया सिंगिंग। तो अगेन द इंटरव्यूइंग ऑफिसर सेड कि सिंग अ सॉन्ग फॉर मी। तो फिर मुझे कहा, तो मैंने कहा सर कैन आई सिंग फोक सॉन्ग, तो बोले हाँ यू कैन सिंग अ फोक सॉन्ग। तो वहाँ पे मैंने एक फोक सॉन्ग सुनाया, तो ही वाज आल्सो कि यू हैव अ गुड वॉइस। मैं कहा थैंक यू सर। तो इंटरव्यू पार्ट वाज दैट। बट मैं सोच के गया था कि जो इंटरव्यू है मैं अपने मतलब उससे ले जाऊंगा, मतलब जो मैं चीज बोलूंगा, मतलब आई विल एग्जैक्टली। स्पीक ईच एंड एवरी वर्ड, मतलब बहुत सोच समझ के, कॉशियसली कॉशियसली। बट वहां पे ऐसा हुआ कि जो सीआईक्यूज पूछे गए उस स्पीड में, जिस स्पीड में सर बोल रहे थे 8-9 क्वेश्चंस, तो इट मेड मी बिट नर्वस। तो मैं उस टाइम एग्जैक्टली। थोड़ा फंबल हो गया था। तो उसके बाद मैं अपना कंट्रोल नहीं था, जो सर पूछे जा रहे थे आई वाज टेलिंग ईच एंड एवरीथिंग। बहुत फेयर हो गया था, मैं फैब्रिकेट कर ही नहीं पा रहा था कुछ आंसर। जो वो पूछ रहे हैं आई वाज जस्ट टेलिंग ये हुआ सर, ये हुआ। सो ये सर। So in this way, my whole interview was gone, sir. And the extra questions which was put up out of my PIQ, it was the charter of Indian Coast Guard, कि Indian Coast Guard की क्या responsibilities हैं. And the next question was the hierarchy, rank structure of Indian Coast Guard, be it gazetted officer or the non-gazetted personnel. तो कमिश्नर। ये दोनों पूछे गए थे सर। तो इतना तो बेसिक नॉलेज मैं थोड़ा पढ़ के गया था, ये सर कमीशन और नॉन कमीशन का। तो बाकी सारा सर पीआईक्यू से था, और क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई थी सर, बाकी नहीं सर। Okay, so it was just basically PIQ related. 402 room number, guys, mark it. If you're पीआईक्यू lucky सर। you on the PIQ. हम्म। Okay, that officer is very chill. He'll 402। ask you only PIQ related. One, two question you can go here and there is because on the basis of your PIQ, which you'll answer it and you diving him towards the, directing him towards the GK or anything. Like by your name only you started with this and directed it to Tibetan यस and सर, all. यस सर, So whatever you speak यस सर, depends on you because the question is coming from there only. So you have to be a little bit cautious about the thing what you want to speak because you should know that you should be ready for other reaction to your answers. So be ready for that, यस सर, right? So I think they should यस सर। mark things, right? Any other thing you would like to tell about the interview, like how they should behave and all, it was, yeah. Yes, sir. So the interview part also depends on the assessor also obviously। तो जैसे कि मेरे साथ वाले फ्रेशर्स थे, लेकिन उनका 7th फ्लोर पे पड़ा था, 7th फ्लोर पे आईओ सर वाज देयर। Yeah, तो 7 not उनसे एसआरटीजी पूछी गई और करंट का भी पूछा गया। hmm. हाँ सर, 702 और 5 समथिंग, यस सर। तो Seventh उनसे floor पूछे is गए bit सारी dangerous. चीजें। Seventh floor is bit dangerous from starting. Like not dangerous, I would say that, but the यस people सर, ask a lot of technical and यस current सर, affairs questions. Like they'll dive, like they are not more into PIQ, but they are like very deadly in the other यस stuff. सर, Doing 402 it's fine. Okay, यस सर, यस सर। 402 officer is 7th फ्लोर पे very काफी ग्रिल हुआ था। yeah, yeah. 402 officer is यस quite सर। fine. Chill. Okay, and So two IOs were there at 4th floor. hmm, Yes, sir, and one at the 5th floor, and one at the 7th floor, sir. okay, great. So now, Sharab, I think we can move towards your board conference. Okay, so like, tell me, Yes, sir. how was your experience about the board conference? ये सर, सो इंटरव्यू भी फर्स्ट डे हो गया था सर, तो और जीटीओ वाज आल्सो कंक्लूडेड। तो उसके बाद हमारे पास 1 से 2 डेज वर लेफ्ट। तो आई वाज जस्ट रोमिंग हियर एंड देयर, मतलब चीजें ऑब्जर्व कर रहा था, कि आई वाज नोटिसिंग द नेम्स रिटन ऑन द रूम्स, एंड वो क्या क्या है, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स है क्या है, क्योंकि आई वाज Correct. एक्सपेक्टिंग कि मुझसे पूछा जा सकता है if मैं डाउट के। और मैं एसआरटीज पढ़ रहा था, वहाँ बुक्स वगैरह थे दूसरे कैंडिडेट्स के था। तो आई वाज रीडिंग द एसआरटीज की, अगर कोई एसआरटी पूछी जाती है, मैं डाउट केस रहता हूँ, तो I was asking others experience also। तो ऐसे ऐसे करके I spent 2 days after that conference day।
कॉन्फ्रेंस डे के दिन भी हमें शुरू में इंस्ट्रक्शंस ब्रीफिंग हुई थी, तो उसमें भी जो जैसी चीजें बताई गई थी सब वैसा चला। एंड जैसे कि अल्फा फर्स्ट फर्स्ट बैच तो चीजें बहुत जल्दी हो रही थी, हर चीजें सबसे पहले हमसे ही शुरू हो रही थी। तो सबसे पहले मेरे से आगे जो 5 कैंडिडेट्स थे वो गए। सो आई वाज रियली नर्वस एट द टाइम। आई वाज सिटिंग एट द चेयर एंड जस्ट काउंटिंग द स्टेयर्स की मैं नर्वस हो रहा था, ओके, और मुझे ओवरकम द इंटरव्यू पे ही याद आ नर्वसनेस। रहा था कि मैं इतना नर्वस हो गया कि मेरे कंट्रोल में नहीं था, और ऐसा ना हो अंदर के। तो आई वाज जस्ट काउंटिंग द स्टेयर्स, रीडिंग एवरीथिंग रिटन ऑन द वॉल्स, एंड कि मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाऊं इस चीज से कि अंदर के बारे में ना सोचूं। तो व्हेन माय टर्न केम, द वेटिंग पीरियड वाज क्वाइट लॉन्ग। तो मैंने 2 दिन में सुना था कि अगर वेटिंग पीरियड ज्यादा होता है तो या तो रिकमेंडेड है या तो फिर डाउट केस है। तो आई वाज हैप्पी एंड सैड एट द सेम सेम मोमेंट कि अब कुछ भी हो सकता है। सो द बेल रैंग एंड आई गॉट इनसाइड। सो जैसे ही मैं अंदर गया, आई ऑन माय फर्स्ट साइड मैंने सिर्फ अपने इंटरव्यूअर को देखा कि वो सिटिंग एट द लेफ्ट कॉर्नर। तो मैं बैठ गया सीधा। आई विश्ड हिम। जैसे ही मैंने एंटर किया उन्होंने विश कर दिया मुझे कि गुड मॉर्निंग शरद, प्लीज टेक योर सीट। तो मैंने कहा गुड मॉर्निंग सर, एंड आई और जैसे रहा कैसा रहा, तो मैंने कहा सर एवरीथिंग वाज गुड। तो बाहर क्या कर रहे थे, तो मुझे यही ध्यान है कि आई वाज काउंटिंग द स्टेयर्स। तो मैंने कहा सर आई वाज काउंटिंग हाँ, द ओके। Shabir, your voice तो is बोले breaking. ओ 22 स्टेयर्स है, Yes. तो बोले नो इट्स 23। No, no. हेलो। What you said, you're यस सर। counting the stairs. Yeah, you're counting the stairs when you answered in board conference what we're doing outside. So what happened यस after सर। that? So he asked me, I said, sir, there are 22 stairs. So he asked me, no, it's, he said, no, 23 stairs. No, sir, I was confident because I have counted many times. So I said, no, sir, I have counted many times. It's 22, sir. Mm-hmm. So he was just checking me कि मैं उसी आंसर पे स्टिक हूँ या नहीं। तो I was 20। तो which floor do you live? मैंने कहा सर I stay in room number second floor, room number this. So from that till here how many stairs are there? So I took my time, I counted and gave the answer. So he was like okay. So मैं इतना नर्वस था कि मैंने इंटरव्यूअर के अलावा कुछ नहीं देखा सर। राइट नाउ आई एम अनेबल टू रिमेम्बर द रूम और हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द, बिकॉज मेरा Exactly. पहला ऐसा वो मोमेंट था जब इतने सारे ऑफिसर्स को मैं सामने ऐसे कन्फ्रंट कर रहा था सामने से। तो मैं मुझे सिर्फ इंटरव्यू का चेहरा याद है, और उसके सामने थोड़े प्लांट्स वगैरह थे, बाकी कुछ याद नहीं मुझे सर। तो उन्होंने पूछा कि इन 5 लाइन्स टेल मी योर एक्सपीरियंस ऑफ दीज 5 days। तो मैंने बोला कि इट वाज रियली एनरिचिंग फॉर मी, आई लर्न फ्रॉम डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, ऐसा ऐसा। तो इट वाज गुड। तो ही सेड ओके थैंक यू। सो आई जस्ट गॉट अप एंड मैं बाहर निकल गया, और उसके बाद हमें नीचे वेटिंग एरिया में वेट करना था। तो Correct. बस नीचे जाते ही फिर सारे पूछने लग गए कि हाउ वाज योर कॉन्फ्रेंस, ऐसा ऐसा, वेटिंग टाइम कितना था। तो वैसा ही सर, फिर प्रेशर डेवलप हुआ जब तक 72 की बारी आई। तो बड़ा टेंस माहौल था, कभी कोई आ रहा है फिर वो बता रहे कि मुझसे साइटीज पूछिए। तो थोड़ा Mm-hmm. नर्वस माहौल था उस टाइम। Okay. The result announce हुआ तो कितने recommend हुए, कैसे क्या रहा सही? यस। सो द रिजल्ट टाइम सारे लोग आ गए थे, लंच भी हमने कर लिया था। आफ्टर दैट लंच के सर वी वर सिटिंग इन द हॉल। द कमांडेंट, I don't remember his name, but he was my interviewing officer. My interviewing officer was there. Oh, He came with the results. So he briefed us कि this थोड़ा हमें वो बताया कि ऐसे ऐसे है लाइफ में, और भी अपॉर्चुनिटीज है। कोई अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, तो वो अच्छा डिफेंस में नहीं, ऐसे वगैरह बोला। एंड कहा कि दिस वाज द मतलब सबसे अच्छा बैच मैंने आज तक देखा है। तो वो रिजल्ट, नाउ आई विल कम टू द रिजल्ट्स। तो सीधा मुझसे आगे एक चेस्ट नंबर है, चेस्ट नंबर 5। तो ही सेड कि आई विल कॉल द रोल चेस्ट नंबर्स, एंड यू हैव टू स्टैंड एंड शाउट योर नेम। सो सीधा चेस्ट नंबर 5 ही सेड हिज नेम, एंड सीधा चेस्ट नंबर 6। आई वाज रियली हैप्पी। तो मैंने सीधा अपना नाम दिया एंड आई वाज, मुझे बाहर जाने को बोला, तो मैं बाहर चला गया था सर उसके बाद। just number 6. Correct. चेस्ट नंबर 6, राइट सर। सो देयर वर टोटल 14 रिकमेंडेशन फ्रॉम 72 सर। तो बहुत ज्यादा रिकमेंडेशंस थी। तो वेट करते हुए लोग आए जा रहे थे बाहर जो भी रिकमेंडेड थे। तो आई वाज काउंटिंग 10 11 12, तो लास्ट में सर टोटल 14 हुए। तो द आईओ सर केम अगेन एंड ने एक बार क्रॉस चेक किया, नाम वगैरह दोबारा से पूछे, काउंटिंग हेड काउंट हुआ, तो उसके बाद वो चले गए थे। फिर बाकी सबको उसके बाद भेज दिया था सर। तो शरब, जब इसमें कितने बंदे रिकमेंड हुए आपके बैच में से, जिनका जो आपके 9 लोग थे उसमें से कितने क्लियर हुए? यस सर, फर्स्ट बैच में 72 रिपोर्टिंग थी, और सर 14 रिकमेंडेशंस होते सर। नहीं, आपके जो ग्रुप में जो लोग थे उनमें कितने रिकमेंड हुए? जैसे 9 का ग्रुप था ना आप लोगों का। अच्छा। यस सर, हम 9 में से सर 3 रिकमेंडेशंस हुई थी सर, चेस्ट नंबर 5 6 एंड 9 सर।
So ऐसी कोई क्वालिटी जो आपको याद हो कि they were good at, like, you know, any at any stage during you, maybe in physical, or maybe putting up good points with the stats in GD, maybe have a good calculation speed in, you know, calculated ideas of the things in GP, maybe yes, good in showing the leadership skill during the lecture time, like influencing or motivational yes. kind of thing. Any qualities you come across with those three people in the group, two people, yeah, सर if you जो मेरे can. साथ वाले थे द यस सर, द कॉमन थिंग वाज वो दोनों ही बहुत ऑनेस्ट है सर. सो ऑनेस्टी इज द सबसे मेन थिंग. और दे आर वेरी पंक्चुअल और बहुत ही सिंसियर है सर. वो मतलब जैसे हॉलीनेस इज देयर, आप मस्ती करते हैं ग्रुप, सारी चीजें हैं, लेकिन अलोंग विद दिस दे आर वेरी सिंसियर एंड दे आर वेरी ऑनेस्ट सर. ये चीजें दोनों में बहुत ही कॉमन है. बाकी डिफरेंट पर्सनालिटी, डिफरेंट ट्रेट्स आर देयर. तो ये दो चीज, ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी, दोनों में है सर. वो बहुत पॉजिटिव चीज है और जो हर एक टास्क में बहुत नेसेसरी है सर. तो ये चीजें सर, क्वालिटी जो मैंने देखी उनमें अलग थी बाकियों से. ओके, आई थिंक काफी ज्यादा लंबा होता है 5 days का प्रोसीजर बीन थ्रू. यस कैन इमेजिन यस सर. that when they call you for the medicals after a week, or like you can report anywhere in Bangalore also, in Command Hospital, or like in Delhi only. नो सर, ओनली बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट. यहाँ पे इनिशियल मेडिकल बोर्ड होते हैं सर. तो उस दिन फॉर्म्स वगैरह भरे जाते हैं और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है जो हमें 1 महीने के अंदर सबमिट करने रहते हैं, उनके बारे में बताते हैं. तो उसमें सीडी वगैरह रहती है, सीडी में फोटोज वगैरह डालना और बाकी सारे फोटो कॉपीज वगैरह. और साथ ही साथ एक इंस्ट्रक्शन लेटर मिलता है फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, इनिशियल मेडिकल बोर्ड्स के लिए, जिसमें पीछे सारे रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की लिस्ट होती है. उसमें उसके नेम्स और रोल नंबर होते हैं और आगे उसमें इंस्ट्रक्शंस गिवन होती है कि हमें इतने इतने दिन में रिपोर्ट करना है. तो फ्राइडे, इट वाज 14th ऑफ जुलाई जिस दिन हमारा रिकमेंडेशन हुआ था. तो हमें 18th को ट्यूसडे को रिपोर्ट करना था सर, एट बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट, मॉर्निंग 8 AM सर. तो वहीं पे होते हैं सबके, और सबका यही प्रोसीजर है. फ्राइडे को सर रिकमेंडेशन, और उसके बाद नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को इनिशियल मेडिकल बोर्ड के लिए 8 बजे रिपोर्ट करना सर, मेडिकल बोर्ड में. Okay, great. Sharab will cover the medical some other day. यस सर. Okay. So how यस you सर. feel after your recommendation when they call out your name, and like anything you would like to suggest to the candidates which are going about to go, maybe in maybe the coming week? Any suggestion you would like to give to them? यस सर. यस सर. सर सबसे पहले जो फीलिंग थी सर, इट वाज बहुत अदर वर्ल्डली फीलिंग थी. शुरू में तो पता ही नहीं लगा. जैसे चेस्ट नंबर कॉल कॉल आउट हुआ, शाउटेड माय नेम एंड आई Correct. वाज मैं बाहर निकल गया था उसके बाद. सो बाहर थोड़ा सिंक इन होने में टाइम लगा. आई वाज रियली हैप्पी. तो समझ नहीं आ रहा था उस टाइम क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स बाहर आ रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे माहौल था. बट थोड़ी देर बाद जब मैं सिंक इन हुआ तो उसके बाद रियलाइज हुआ कि ऐसा ऐसा है. तो इट वाज वेरी इमोशनल फॉर मी आल्सो, बिकॉज Right. हार्ड वर्क थोड़ा पुट इन हुआ और बहुत फेलियर्स के बाद सक्सेस मिली. तो थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट भी था. तो फिर उसके बाद सबको कॉन्ग्रेचुलेट वगैरह किया, फिर सारे आए, तो बहुत अच्छा मोमेंट था. उसके बाद अच्छा लगा सर. बट फिर आगे और चैलेंजेस भी थे. ये तो अभी थर्ड स्टेज था, इसके बाद फोर्थ फिफ्थ स्टेज है, मेडिकल्स है, मेरिट लिस्ट आनी है. तो वो ध्यान में था कि वो चीजें और अच्छे से कर. अभी तक जो था इट वाज गुड, बट वी शुड आल्सो प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप. तो बाकी एवरीथिंग वाज गुड सर. और बाकी सर सजेशन के लिए तो मेरे सजेशन यही है कि सर डॉक्यूमेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है. डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल मिस ना करें. फोटोकॉपीज चाहे जो भी हैं वो अच्छे से ले जाएं. जो भी आने वाले कैंडिडेट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स बोले हैं आप ज्यादा ले जाओ, कोई वो नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स कम होंगे तो यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज. और दूसरी चीज सर, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो और एक डिसिप्लिन बहुत मेंटेन करने की जरूरत है सर. Mhm. अदर देन असेसमेंट, हमें वैसे भी बहुत डिसिप्लिन रहना होता है हर एक उसमें, चाहे मेडिकल्स में भी मैंने देखा सर और एफएसबी में भी. क्योंकि जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे वो ओवरऑल बहुत डिसिप्लिन थे सर. उनको जो भी टास्क मिला है मस्टर के लिए उन्हें बोला है तो देवर ऑन टाइम, एवरीवन ऑन टाइम. मतलब कोई भी ऐसे मस्ती नहीं, और सारी चीजें, सोने का टाइम प्रॉपर, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सर. अदर देन असेसमेंट पार्ट की तो हम तैयारी करते हैं, लेकिन ये चीजें हम देख के नहीं जाते हैं. बट आई थिंक सो कि ये चीजें भी असेस की जाती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सर. No, no, everything is very, very important when they're selecting you. So, यस Sharab, सर. it was a nice, interacting with you. I think your यस insights will सर. definitely help the थैंक यू. candidates who are appearing. And the last thing, if थैंक you यू. wish, like, if you are willing to sing a song which you sang, or any one of that 2, 3 lines, if you wish to, यस सर. your call. It's your सर. wish. You can sing for the audience. They'll be happy to hear यस सर, what kind of श्योर. song you sang. Maybe the जो song आपने interview के लिए गाया था, you can make like 2, 3 lines, whatever, with your wish. यस. Is it okay?
Yes, yes, sir, fine, sir. Sir, उस Okay, time okay. instrument नहीं था, but right now I have a ukulele with me. Can I use it? Which, yes, please get it fast. Sure. Thank you, sir. Thank you. थोड़ा सा पीछे हो जाओ कैमरे में ना, will be more. Yeah. How long it will go, that song? 3 minutes, 2 minutes? Just one and a half minutes, sir. Okay, start. Yes, sir. दिल की कथा भी है क्या, मुझको गिला भी है क्या, इस दिलगी के सिवा दिल ने किया भी है क्या, अशिक है ये जो नहीं है, मैं क्या करूं, दिल पे मेरा जोर नहीं है, मैं क्या करूं, आशिक है ये जो नहीं है, मैं क्या करूं, दिल पे मेरा जोर नहीं है, मैं क्या करूं, गोरी तेरी आंखें कहीं तू रात भर सोई नहीं, ना देखे चुप के कहीं, हर तारे जानते हैं सभी. Thank you, sir. Thank you so much. Oh, really, you have a great voice here, like beautiful voice. Do you have any Thank you, sir. YouTube channel Thank or you so much. Instagram you sing songs? You have something? No, sir, I'm thinking कि मैं कोई चालू करूंगा YouTube, but अभी तो ऐसे ही sir, practice learning, sir. No, no, you have very, calm or peaceful voice. If I work 12, 15 hours and I go to my room and I sleep, that kind of voice I want to hear so I can relax myself, right? Thank Okay. you so much. So Means just a keep lot, singing. means a lot. Being an Okay. artist means a lot, sir. So you have to, because these are some things you should build up over time, and you maybe, I don't know, maybe you're gifted with it, or maybe Yes, you're sir. working. Definitely, work is required. No one is gifted with anything. Hard work is required. Maybe that Yes, reflect yes, sir. in you with this and with the service. So whatever. So I hope the audience gonna Yes, like this. But some internet connection was there, but it was good. You have a very good voice. sir. Not good, I would Thank you, say sir. elegant, or I don't have words. And the point is that I hope like you get some more approaches. I hope Yes, so. sir. Right? Thank you, sir. Thank you. Okay, so Sharab, this meeting is about over now. I'll just join the link again for 3-4 minutes. Okay, 5 minutes max. Okay, no? Sure. I'll share the link. Yes, Join sir. for. Right, sir. Right, sir. Yes.